myself Anil Kumar Chotu, Assistant Professor in Department of Civil Engineering. Today we start a new chapter, Geometric Design. So previously we see highway planning, alignment survey, and then first 20-year plan, second 20-year plan, third 20-year plan, and then some recent road projects like that, like Bharatmala project, like Sagarmala project, like Char Dham road project, like that. All we see in the previous module. Now we start another module second, in which we deals with geometric design of highway. So geometric design of highway, what are component we design in this module are like vertical curve, horizontal curve, then we have super elevation, and then we have side distance, extra widening. All these parameter we will design in the highway design section, highway geometric design section. So in the first introductory lecture we will see which are the factor affecting the highway design, like topography, like design speed, like traffic volume, and like environment, and all these factors, how these factor affects the geometric design. First we will see. In the subsequent lecture we see the different component of the highway geometric design, like design of camber, curve, shoulders, side rails, footpath, free driveway, busway, all this. So in the geometric design section we will start here from the what is importance of geometric design. Why geometric design is important? Because as we know that alignment fixation of the highway is not easy work. When we are selecting the alignment of the road, it is very difficult to select the state alignment. Somewhere we have mountains, somewhere we have river, somewhere highly dense city, urban city, in this way. So we have to overcome with some horizontal deviation, we have some vertical deviation, we have so all these we have to consider in geometric design. So geometric design is very important aspects of highway engineering. Let us see. So the geometric design of a highway deals with the dimension and layout of visual features of the highway, such as alignment, side distance, and intersection. So in geometric design we deals with alignment fixation, side distance, very important for the driver. If your sight is not clear, how you can drive? If you are not able to see the driver in front of you, there is possibility of collision. If there is collision, means accident is there, then it may harm you. There may be light accident, there may be severe accident. The main objective of highway design is to provide optimum efficiency in traffic operation with maximum safety at reasonable cost. This is very important. Our efficiency is maximum and safety with maximum safety. We run our vehicle with design speed with maximum safety. That is the main objective of the geometric design. The main objective of highway design is to provide optimum efficiency in traffic operation. Means efficiency means we can use the maximum of its design consideration, like design speed. Okay, and that should be, if we use design maximum of its design consideration or efficiency with consideration of safety. Geometric design of highway deals with the following element. What are the element? Cross section design element,
side distance consideration, horizontal alignment details, vertical alignment details, and intersection element. We deal with cross section. What are the cross section? What are the carriageway length? What are the right of way? What is the building line? All these we consider in the cross section element. Then we have side distance consideration. How to design a highway on the basis of side distance. It is visible to the driver or it is not visible to the driver. Everywhere we have to see the side distance. Is there any obstruction in the side distance? How to minimize that obstruction? Then we have horizontal alignment. Suppose we have some horizontal, as we discussed previously, the highway alignment not possible to aligned always. So we have many deviation from its state alignment. So characterize this deviation, to incorporate with this deviation, we need some horizontal curve. So that curve have some radius. We have to design that radius. According to that radius, we have to provide some super elevation. According to that super elevation, we have to raise the outer edge of the road so that there is no skidding of the vehicle. That way, then vertical curve, when we fix the alignment, it goes through some high area. So when we are going to higher area, then we have vertical curve. So we have to incorporate with that. Then intersection element, in between we have intersection element. So road is connected with other road also. So we have to consider that intersection point also. Design control and criteria. What are design control criteria? Design speed is very important, then topography, then traffic factor, then design hourly volume and capacity. What is the design hourly volume and what is capacity of the road? Then environmental and other factors. These are the design criteria. Main is design speed, then topography, then traffic factor, how much traffic is coming there, what is the density, what is the volume, what is hourly volume, and environmental factor like aesthetics, then pollution, all these considerations. So design speed in India, different speed standards have been assigned for different class of the road. अदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए अलग है, तुम्हारा एक्सप्रेसवे के लिए अलग है, मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अलग है. तो सभी के लिए अलग अलग कंसिडरेशन दिए हुए हैं, वो तुम IRC कोड में देख सकते हो. डिजाइन स्पीड में भी मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टेराइन कंडीशन. और इसको टेराइन कंडीशन पर, जैसे मैंने बताया, 4 तरह के टेराइन कंडीशन है हमारे पास में. सबसे पहले प्लेन टेराइन जिसका स्लोप तुम्हारा 10% होता है. उसके बाद में आता है रोलिंग टेराइन, 10 से 25% तक होता है. उसके बाद में होता है तुम्हारा माउंटेनियस टेराइन जिनका तुम्हारा स्लोप 25 से 50 तक होता है. और ग्रेटर देन 50 जो होता है तुम्हारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिली टेरेन बोलते थे. ये चारों तरफ. तो ये तुम्हारा जो ये पुराने कोड के बेसिस पर है, तुम नया वाला में देख सकते हो. तो ये देखो, यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा है स्पीड रेंज है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए तुम्हारा प्लेन टेरेन में 100 और मैक्सिमम रूलिंग में तुम्हारा इतना, और मिनिमम डिजाइन स्पीड 80 बता रहा है. रूलिंग डिजाइन स्पीड 100 और तो रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या होता है आगे हम चल के देखेंगे. मिनिमम डिजाइन स्पीड 80 बता रहा है. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 80 और 65, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65 और 50. ये सारा मैं प्लेन टेरेन के लिए बता रहा हूँ. सिमिलरली तुम्हारा रोलिंग टेरेन के लिए, सिमिलरली माउंटेनियस के लिए, और उसके बाद में तुम्हारा स्टीप टेरेन के लिए. और टेरेन कैसे हम बांटते हैं तो ऊपर दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया. प्लेन टेरेन 0 से 10% तक होता है, रोलिंग टेरेन 10 से 25 तक होता है, माउंटेनियस टेरेन तुम्हारा 25 से 60 होता है, स्टीप टेरेन ग्रेटर देन 60, सॉरी प्रीवियसली मैंने 50 बोल दिया था, 25 से 60 होता है. तो इस तरह से तुम्हारा सारे टेरेन का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा. और इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह का लैंड का, ये लैंड का स्लोप है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में लैंड कितना एंगल बना रहा है. तो जनरली प्लेन टेरेन में 10 डिग्री तक हम लोग मानते हैं. उसके बाद में रोलिंग टेरेन में तुम्हारा ये स्लोप हो जाता है तुम्हारा 10 से 25. उसके बाद माउंटेनियस में 25 से 60 और स्टीप टेरेन में ग्रेटर देन 60 हो जाता है. तो इन सब बातों का तुम्हें इनकॉर्पोरेट करना है, यूज करना है. तो ये हो गया तुम्हारा टेरेन स्पीड क्राइटेरिया. ये हो गया तुम्हारा टोपोग्राफिकल क्राइटेरिया. टेराइन जो है टोपोग्राफी के अंदर आता है और स्पीड क्राइटेरिया स्पीड में है तुम्हारा. तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर
तो टोपोग्राफी में जैसे मैंने बताया उसी तरह से तुम्हारा दिया हुआ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैफिक फैक्टर, तो ट्रैफिक फैक्टर में तुम्हारा दो तरह का फैक्टर होता है तुम्हारा, एक होता है वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे यहाँ मिक्स ट्रैफिक है, बस का साइज कुछ और है, ट्रक का साइज कुछ और है, कार का साइज कुछ और है। तो ये मिक्स ट्रैफिक में हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें एक इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको पैसेंजर कार यूनिट या पैसेंजर कार इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो एक होता है तुम्हारा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अलग अलग व्हीकल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, विड्थ अलग, हाइट अलग है, वेट अलग है, उसका स्पीड अलग है। और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा एज ए ड्राइवर अलग अलग ड्राइवर का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारा, जिससे किसी का मतलब बहुत हेल्दी होता है, किसी का विजिबिलिटी अच्छा नहीं है, कोई अच्छा से सुन नहीं पाता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई मान लो कि साइकोलॉजिकल किसी पर मतलब साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, इस तरह के सारे प्रेशर आते हैं। डिफरेंट व्हीकल क्लास हैव डिफरेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिससे जिससे जिस तरह का वेट, हाइट, लेंथ होगा उसी तरह से उसका स्पीड और एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, डिफरेंट डायमेंशन एंड वेट होगा। ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल। तो फिजिकली कोई ज़्यादा मोटा होता है, कोई ज़्यादा कम मोटा होता है, कोई पतला होता है, ये फिजिकल में आ गया। मेंटल में आ गया, उसका माइंड सेट कैसा है। साइकोलॉजिकली मान लो कि वो जब ड्राइव कर रहा है तो उसका माइंड सेट कैसा है, घर से झगड़ा करके तो नहीं आ गया है, मान लो किसी से मारपीट करके तो नहीं आ गया, कहीं उसको जल्दी पहुँचने का तो ये नहीं है कि चलो हमें ऑफिस जाने में लेट हो गया, घर से निकलने में लेट हो गया था, अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर ट्रैफिक फैक्टर में आ गए। देन आता है तुम्हारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है एस्थेटिक्स आता है, उसका लैंडस्केपिंग आता है। एस्थेटिक्स मतलब हो गया तुम्हारा उसका लुक कैसा है तुम्हारा। उसके बाद में लैंडस्केपिंग, लैंड किस तरह से है, जैसे पहाड़ी एरिया वगैरह है तो किस तरह का एरिया है, लैंडस्केपिंग में आ गया। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तो ये सब तो जानते ही हो, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है तुम्हारा, पेवमेंट जब हम बना दिए जो मटेरियल, उसका सरफेस कैसा है, रफ है कि प्लेन है, ठीक है, किस तरह का है वो, हार्ड है कि सॉफ्ट है, हॉट है कि वार्म है, मतलब इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। तो पेवमेंट सरफेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पेवमेंट विच डिसाइड बेस्ड ऑन द, तो पेवमेंट का जो सरफेस है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट का अलग होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा लेयर होता है, जैसे हम लोग देखेंगे आगे। और रिजिड पेवमेंट कंक्रीट का होता है, तो उसमें कम लेयर होता है, बेस होता है, उसके ऊपर में तुम्हारा कंक्रीट का बेस होता है। सबग्रेड के ऊपर में तुम्हारा कंक्रीट का बेस डालते हैं। और जो तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है उसमें सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, बेस होता है, वेयरिंग कोर्स होता है, ठीक है, सरफेस कोर्स होता है। तो इस तरह से तुम्हारा डिफरेंट उसमें ये होता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है तुम्हारा पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उसके बाद वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक, किस तरह का वॉल्यूम आ रहा है, किस तरह का कंपोजिशन है। हैवी वॉल्यूम आ रहा है तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग रोड की जरूरत पड़ती है, लाइट वॉल्यूम आ रहा है तो लिटिल बिट वीक रोड से भी काम चलेगा। सॉइल सबग्रेड कैसा है तुम्हारा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी कैसा है, कॉस्ट कंसिडरेशन, ये सारा हम लोगों को लेना पड़ता है कंसिडरेशन में। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है तुम्हारा, ये पेवमेंट तो उसमें आता है तुम्हारा फ्रिक्शन, तो ये हो गया ऊपर हो गया। तो पेवमेंट सरफेस डिपेंड करता है ये सारे पे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फ्रिक्शन, पेवमेंट अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा। तो फ्रिक्शन में तुम्हारा दो तरह की घटनाएं होती है तुम्हारा, एक होता है स्किडिंग और दूसरा होता है स्लिपिंग। तो स्किडिंग में क्या होता है तुम्हारा, पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट। जब क्या होता है कि हम ज़्यादा डिस्टेंस तक चले गए और गाड़ी का जो सर्कमफेरेंशियल मतलब 2πr डिस्टेंस है वो उसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, तो इसको हम बोलते हैं स्किडिंग। और स्लिपिंग में क्या होता है तुम्हारा, व्हेन द व्हीकल रिवॉल्व्स मोर देन द करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो क्या होता है कि व्हीकल घूमे जा रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, दोनों रिवर्स फिनोमेना है। तो और फ्रिक्शन के लिए आईआरसी ने दो तरह का फ्रिक्शन बताया, एक बताया अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, तो जिसको लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 0.35 से 0.4 के बीच में, ये स्पीड पे डिपेंड करता है तुम्हारा। और एक होता है लेटरल फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू तुम्हारा 0.15 होता है फिक्स। तो ये तुम बताएंगे कहाँ यूज होता है, जैसे साइड डिस्टेंस से निकालते हैं जब हम लोग, तब हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग फ्रिक्शन और इसकी रेसिस्टेंस को कौन सा, तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस और रफनेस ऑफ द पेवमेंट पर, कंडीशन ऑफ पेवमेंट, वेट और ड्राई, टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर, टायर पुराना है मतलब न्यू है या ओल्ड है, स्मूथ है, लाइक दैट, स्पीड ऑफ द व्हीकल, ब्रेक इफिशियंसी,
लोड एंड टायर प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑफ टायर एंड पेवमेंट, दोनों का ये सारे बातों पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ज़्यादा डिटेल में ये सारे पर हम पेवमेंट डिजाइन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। पेवमेंट अनइवननेस के बारे में दिया है तुम्हारा, तो हायर ऑपरेटिंग स्पीड आर पॉसिबल ऑन इवन सरफेस। अगर मान लो रोड थोड़ा खराब रहता है तो कितना दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा अंडुलेशन होता है, वो वियर टियर इफेक्ट करता है तुम्हारा व्हीकल पे, ठीक है। तो हायर ऑपरेटिंग स्पीड तुम्हारा किस पे हो सकता है, इवन सरफेस पे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पेवमेंट अनइवन किसके व्हीकुलर ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। अगर अनइवन सरफेस रहता है तो ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, कंफर्ट एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। अगर इवन सरफेस रहता है तो बहुत कंफर्ट से हम जाते हैं, अनइवन सरफेस रहता है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, अनइवन वियर एंड टियर होता है तुम्हारा। और इसको नापने के लिए पेवमेंट अनइवननेस को मेजर करने के लिए हम बम्प इंडिकेटर यूज करते हैं। बम्प जो इंटीग्रेटर होता है, इट गिव्स इज द क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द पेवमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ। एक यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ जाने में कितना अंडुलेशन है इसके, जैसे जनरली होता है 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर फॉर स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड मोर देन 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर कंसिडरेबली वेरी। तो इस तरह से ये तुम्हारा बदलते रहता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो गया तुम्हारा, पेवमेंट ये हो गया। अनइवननेस ऑफ पेवमेंट सरफेस में भी काउट किसके कारण होता है, प्रॉपरली कंपेक्शन नहीं होता है। जब तुम्हारा सब ग्रेड मतलब जो वर्जिन सॉइल होता है उसको हम सब ग्रेड बोलते हैं। तो सब ग्रेड को अगर हम प्रॉपरली कंपैक्ट नहीं करते, प्रॉपरली उसको मतलब कंपेक्शन नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत जब रोड बन जाता है, जब उस पर लोड आता है तो उसमें क्या हो जाता है तुम्हारा डिफ्लेक्शन हो जाता है। डिफ्लेक्शन से रोड में अनइवननेस हो जाता है। अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, हम साइंटिफिकली कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, प्रॉपरली हर लेयर को कंपैक्ट नहीं करते हैं, जो हमारा कोड का था कोडल प्रोविजन को हम फुलफिल नहीं करते हैं। तो इंक्लूडिंग यूज ऑफ बोल्डर स्टोन्स एंड ब्रिक्स, जो हमें स्टोन अच्छा का एग्रीगेट यूज करना चाहिए, तो और उसके जगह पर हम ब्रिक्स वगैरह, खराब ब्रिक्स वगैरह यूज कर देते हैं। उसके कारण होता है यूज ऑफ इन्फीरियर पेवमेंट मटेरियल अच्छा नहीं होगा, तो उसके कारण भी होता है तुम्हारा इम्प्रॉपर सरफेस एंड अनसरफेस ड्रेनेज। और अगर सरफेस ड्रेनेज अच्छा नहीं होता, बारिश हो रहा है और सारा पानी स्टक कर जा रहा है, तो उसके कारण अंदर जाएगा, तो पानी अगर परकोलेट करेगा तो नीचे वेट होगा सॉइल, तो उसके कारण उसमें क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइट रिफ्लेक्शन देखो, नाइट ड्राइविंग के लिए लाइट रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिसको हम बोलते हैं हेडलाइट ग्लेयर। तो उस तरह का मटेरियल यूज करना है हमको कि जो कि हेडलाइट को अच्छे से रोड सरफेस को दिखाए और ग्लेयर मिनिमम दे, हेडलाइट ग्लेयर। तो नाइट विजिबिलिटी इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द नाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेवमेंट सरफेस। तो जिस तरह का पेवमेंट सरफेस होगा, जो अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो गुड माना जाएगा। तुम द ग्लेयर काउंट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ हेडलाइट इज हाई ऑन वेट पेवमेंट। वेट पेवमेंट पर ग्लेयर हाई होता है और ड्राई पेवमेंट पर क्या होता है, कम होता है तुम्हारा। लाइट कलर्ड और वाइट पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट सरफेस गिव वेरी गुड विजिबिलिटी एट नाइट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन। तो जो तुम्हारा रिजिड पेवमेंट होता है, जो वाइट कलर पेवमेंट होता है, उसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा होता है ड्यूरिंग द रेन कंपेयर टू बिटुमिनस पेवमेंट एंड प्रोड्यूस ग्लेयर ऑन आई और स्ट्रेन ड्यूरिंग ब्राइट सनलाइट। और डे टाइम में वो अच्छा नहीं होता, नाइट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि पेवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा फैक्टर जो है वो हाईवे को इफेक्ट करता है। तो एक बार समराइज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि डिजाइन स्पीड है, इन्वायरमेंट है, उसके बाद में तुम्हारा फ्रिक्शन है, उसके बाद में तुम्हारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारे का क्या फैक्टर है, पेवमेंट का अनइवननेस का क्या इफेक्ट है, अब अनइवननेस हम कैसे मेजर करते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल दिस जो है हम लोग इसमें इफेक्ट करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन को। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन, लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ए हाईवे, और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए हाईवे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए रोड पेवमेंट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।